So once again, good morning, everyone. My day starts with good morning, ends with good morning only. So even I deliver session in the evening, I'll start with good morning. So please start saying good morning throughout the day. So yesterday we discussed the basic idea about Python programming, that what is Python and why Python is that popular in the industry, that popular in the market. So our we got a basic understanding. Python is having multiple features, that Python is getting that much popular in the industry. Number one, Python is open source programming language. Python is having easy syntax, more English like. Python is platform independent. Python is having a big library set. Python is having 2.35 lakhs plus libraries. Billions of predefined functions and methods are there in Python. Python supports modular approach of programming. Python makes the project scalable. Python provide you dynamic data type definition. Python provide you dynamic memory allocation, and there are many more reasons to go. So once we'll dive deep into Python, we'll get many more reasons, right? So today our topic is that after learning Python, what is the career path? Okay, what is the career path in Python? In which domains we can enter, and what are the exact domains, means what we have to learn to become a data driven domain professional, or a full stack developer. Yeah, so let's start the session. So first and foremost, after learning Python, we discuss the applications of Python. So applications of Python can be categorized into two parts. One is, yesterday we discussed, one is data driven domains, and second is, or other domains we can say. Data driven domains, after learning Python, you can enter into the domains like data analytics, data science or business analytics. You talk about data science, you talk about machine learning, deep learning, image processing, natural language processing, artificial intelligence, or you talk about generative AI, or any related domain. If you talk about data driven domains, then Python is there, only Python and Python is there. But if you talk about other domains, you talk about any domain, Python is there somewhere or the other. Okay? You talk about other domains like you want to make some hardware specific applications, you want to make some applications for some particular controllers, like Arduino controller is there, Raspberry, the people who are from electronics background, Arduino controllers, processors are there, Arduino Raspberry Pi boards are there. You talk about 8085, 8086, 8051 microcontrollers, microprocessors. So everywhere IoT applications, embedded system applications, robotics applications, Python is having a great demand in those domains as well, right? If you talk about domains like security domains like ethical hacking, you talk about network security, you talk about cyber security, then definitely the scripts are being written in Python these days. You talk about normal networking also, you talk about full stack development, full stack web development, then Python is there in the background. Python, Django and different other frameworks are there in Python. Full stack development, you talk about mobile application development, then you talk about any CAD tools for electronics, CAD tools for mechanical, CAD tools for civil, automobile designing, car designing, anything you talk about, then somewhere or the other Python is being used in the industry these days, right? So now the most important domains out of Python, out of these all domains we discussed, the one is the data driven domains,
data driven, and number two is full stack web development domain. Now many times if we talk about I know people are a bit aware about the concepts like data analytics, what we have to do in data analytics, what we have to do in business analytics, data science, machine learning, deep learning, right? You have generally students, those who are joining a course at SETPA, they have some basic understanding about these topics, but what exactly data analytics is, what exactly data science is, that is our topic of the day, especially we talk about, okay? So this is a very important question being asked in the interview, that what is the difference between data analytics and data science. So can you guys tell me what do you mean by data analytics? Yeah, online students, offline students, what do you mean by data analytics? Yeah, processing the batch of information, right? Very good. That is findings, processing a batch of information to get some useful conclusions. Agree? Yeah. Anyone else? What do you mean by data analytics? Making some meaningful conclusions from our raw data. Meaningful conclusions from our raw data. Yeah, very good. Online students, yeah, please tell me. Online वाले बच्चे भी try करो. There is always competition goes on कि ऑनलाइन वाले ज़्यादा अच्छे आंसर देते हैं ऑफलाइन वाले, और ऑनलाइन वालों के पास पावर होती है गूगल की, और आपसे रिक्वेस्ट है गूगल में देख के आंसर नहीं बताना है. हाँ जी, वेरी गुड. अरेंजिंग डेटा इन सम मीनिंगफुल वे और प्रॉपर वे, राइट. डेटा कलेक्शन इन अ डिफाइंड वे, राइट. प्रियंका, वेरी गुड. देखो मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन आवर सेशन, ठीक है. जो बच्चे आंसर्स दे रहे हैं क्लास में, मैं देखो आप लोग का पर्पज क्या है सेटपा में ये कोर्स ज्वाइन करने का. देयर कैन बी टू पर्पजेज ओनली. वन इज आपको अच्छी जॉब मिल जाए, या दूसरा किसी का 1 आउट ऑफ 10 और 100 आपका किसी का मन हो कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, मुझे अपनी कोई मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन बनानी है, तो मैं अच्छे से सीख जाऊं और एप्लीकेशन बनाऊं. लेकिन उस एप्लीकेशन को बना के करोगे क्या अगर आप उसको सेल नहीं कर पाओगे? तो आपको इंटरव्यू में भी अपने आप को सेल करना है, अपनी कोई प्रोडक्ट बनानी है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उसमें भी आपको अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है. और वो सेल कैसे सीखोगे? जब आंसर देना शुरू करोगे. प्लीज़ बी पार्टिसिपेटिव इन द सेशंस, ये मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है. अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ व्हाट डू यू मीन बाय डेटा एनालिटिक्स, और आज तक आपने डेटा एनालिटिक्स के बारे में नहीं सुना, नहीं पढ़ा, फिर भी आपके पास आंसर होना चाहिए. ऐसा कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है डेटा एनालिटिक्स. द एनालिसिस ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स. अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर तो मिल जाएंगे आपको. एनालिसिस ऑफ डेटा इज डेटा एनालिटिक्स. आंसर जरूर देना है, ठीक है. Converts raw data into actionable insights. Very good, Anirudh. Processing and preparing the data to get meaningful insight from the visualizing the data to analyze data to understanding or meaningful way. Data collection in a defined way. Very good. ठीक है. I can see few answers in the chat window, right? Analysis of data is data analytics. ठीक है. तो हमें क्या करना है? डेटा को एनालाइज करना है. सबसे पहले अब आप कोई भी दुनिया में प्रोसेस की बात करते हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो उसका अपना एक लाइफ साइकिल होता है. क्या बोलते हैं हम उसको? SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. जब आप किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हो तो उसका भी अपना एक लाइफ साइकिल होता है. क्या बोलते हैं हम उसको? STLC, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल. ठीक है. तो हर प्रोसेस का इंडस्ट्री में एक लाइफ साइकिल होता है. इस लाइफ साइकिल का मतलब
कि वो प्रोसेस किन किन मॉड्यूल्स किन किन पार्ट्स से मिलके बना है, क्या क्या स्टेप्स हैं उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम उसका लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास DALC भी है, दैट इज डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल। ठीक है, तो डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल हमें क्या बताता है? ठीक है, देखो पाइथन पढ़ रहे हो आप लोगों ने, सेटपा में कोर्स ज्वाइन किया डेटा एनालिटिक्स का, जो बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, किसी ने डेटा एनालिसिस ज्वाइन किया है, किसी ने डेटा साइंस किया, किसी ने AI किया, ठीक है, और किसी ने फुल स्टैक डेवलपमेंट किया। तो इन सब में एग्जैक्टली करना क्या है आपको फ्यूचर में, ठीक है, ये हमेशा एक क्वेश्चन रहता है बच्चों के माइंड में। काफ़ी पाइथन का 50% कोर्स हो गया, लेकिन पाइथन पढ़ क्यों रहे हैं, पर्पज़ क्या है, वो नहीं पता होता। तो उसके लिए आपको ये टर्मिनोलॉजी सही से पता होनी चाहिए कि आप एग्जैक्टली एज अ डेटा एनालिस्ट क्या करोगे इंडस्ट्री में काम, ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, राइट। तो एज ए डेटा एनालिसिस लाइफ साइकिल की मैं बात करूं, ठीक है, तो क्या स्टेप्स हैं डेटा एनालिसिस लाइफ साइकिल के? सबसे पहले कोई भी दुनिया का प्रोसेस होता है, उसका काम होता है, सबसे पहला स्टेप होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला स्टेप किसी को पता है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग या रिक्वायरमेंट एनालिसिस। वेरी गुड, ठीक है, कई बार हम इसको बोलते हैं SRS, दैट इज सॉफ्टवेयर। अगर मैं SDLC की बात करता हूँ तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, SRS हम डेवलप करते हैं, दैट इज DARC, डेटा एनालिसिस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये एक नॉर्मल फर्स्ट स्टेप है जो हर प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट होता है कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है, हमारा पर्पस क्या है, ये हम डेटा रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर हम लोग ये स्टार्ट करते हैं कि हमें करने क्या जा रहे हैं, हमें डेटा एनालिसिस में करना क्या है, कौन सा डेटा हमें एनालाइज करना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। सेकंड स्टेप कलेक्शन ऑफ डेटा। अब डेटा किस फॉर्म में हो सकता है आपके पास? डेटा किस फॉर्म में हो सकता है? हाँ जी, रॉ डेटा इन व्हाट फॉर्म इट कैन बी, शोएब, रॉ डेटा इन व्हाट फॉर्म? हाँ जी, इट कैन बी इन गूगल स्प्रेडशीट्स, it can be in comma separated values, CSVs, TSV, tab separated values, comma separated values, Google spreadsheets। और क्या फॉर्म हो सकते हैं डेटा के? हाँ जी, सॉरी, वॉइस डेटा, राइट। इमेजेस में डेटा हो सकता है आपके पास, वॉइस फाइल्स हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं, काइंड ऑफ वी कैन से MP3, MP4, JPG, MP3, MP4, ठीक है। या फिर आपके पास डेटा हार्ड बाइंडेड कॉपीज में हो सकता है, नोटबुक में भी डेटा हो सकता है, ठीक है, नोटपैड में भी डेटा हो सकता है, या फिर आपके पास डेटा जो है डेटाबेस के अंदर हो सकता है, ठीक है। डेटाबेस कैन बी ऑन योर कंप्यूटर, डेटाबेस कैन बी ऑन सम रिमोट सर्वर। ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले आपको सीखना क्या है कि इन सारी लोकेशन से डेटा को कैसे आपको फैच करना है अपने प्रोग्राम के अंदर। JPG डेटा कैसे इंपोर्ट करोगे, अगर आपका AWS पे कोई डेटाबेस सर्वर पड़ा हुआ है तो वहाँ से डेटा क्लाउड से कैसे आप फैच करोगे, ये सारा काम हम डेटा एनालिसिस के अंदर सबसे पहले स्टडी करते हैं, ठीक है। देन नंबर 3, डेटा को हमने कलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। आस्क, प्रिपेयर, प्रोसेस, एनालाइज, राइट शिवम, वेरी गुड, ठीक है। तो मल्टीपल एक्चुअली अलग अलग साइंटिस्ट या डेटा साइंटिस्ट ने, अलग अलग मैथमेटिशियंस ने डेटा एनालिसिस लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेप्स दिए हैं। अगर आप इंटरनेट पे स्टैंडर्ड जाके देखोगे, यू विल फाइंड सम मैथमेटिशियन, सम ग्रेट साइंटिस्ट, सम ग्रेट टीचर, प्रोफेसर will give 5 steps of data analysis life cycle, some will give 7 steps, some will give 11 steps, but कुछ मेजर स्टेप्स मैं अभी आपको लिख के दिखा रहा हूँ। दैट इज द थर्ड स्टेप इज द प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, राइट शिवम। प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, दैट इज आप डेटा अगर आप लेके आओगे तो डेटा आपका क्या हो सकता है, डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट यूनिट्स में हो सकता है, ठीक है। कि इंडिया में अगर आप वेट मेजर कर रहे हो तो किलोग्राम में है, ठीक है, या टन्स में है, लेकिन आप US में जा रहे हो तो आपका जो वेट है वो गैलन्स में हो सकता है, इंडिया में लीटर्स में हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग आपके फॉर्म्स हो सकते हैं। अब आपके सारे डेटा को सम कर दोगे तो सारा डेटा करप्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको पहले डेटा को कॉमन यूनिट्स के अंदर, कॉमन फॉर्मेट्स के अंदर लेके आना, ठीक है। ब्रिंगिंग द डेटा इनटू सम कॉमन फॉर्मेट्स, सम कॉमन यूनिट्स, ठीक है।
डेटा प्री प्रोसेसिंग कर ली, फॉर एग्जांपल आपके पास कंपनी की सेल है, अमेजोन की सेल है, यूएस में डॉलर्स में है, इंडिया में रुपीज़ में है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग करेंसीज हैं, तो आपको कॉमन करेंसी में लाना पड़ेगा अगर आप कोई भी एनालिसिस उस सेल के ऊपर करना चाहते हो तो, राइट। तो प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा के बाद फिर आप क्या करते हो, डेटा के अंदर से को क्लीन करते हो, डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग के अंदर से क्या होता है, आपके पास फिर अलग अलग स्टेप्स होते हैं डेटा क्लीनिंग के, रिमूविंग आउटलायर्स, रिमूविंग गार्बेज डेटा, कोई डेटा आपके काम का नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा में कोई कॉलम तो है लेकिन उस कॉलम में 100 में से 80 सेल्स एम्प्टी हैं, ठीक है। आपने क्या किया, आपकी एक नई प्रोडक्ट नेस्ले कंपनी ने लॉन्च करी है, वो देखना चाहती है कि प्रोडक्ट चलेगी मार्केट में नहीं चलेगी, सर्वे कराया। अब सर्वे फॉर्म्स आए तो 90% सर्वे फॉर्म्स में 90% डेटा तो फिल ही नहीं होता, ठीक है, बड़ी मुश्किल से कोई रेडी होता है सर्वे फॉर्म फिल करने के लिए, और वो भी आधा अधूरा फॉर्म फिल करेगा, ठीक है। तो आपके पास डेटा तो आ गया, पर ऐसे मल्टीपल कॉलम्स हैं जहाँ पे 80% 90% कॉलम्स के अंदर, सेल्स के अंदर डेटा ही नहीं है। तो क्या करना है हमें, उस पूरे डेटा को हमें क्या करना है, या तो पूरे कॉलम्स को हमें डिलीट कर देना है, या हमें उस कॉलम की एक एवरेज वैल्यू निकालनी है और बाकी सारी सेल्स में उसका एवरेज फिल कर देना है डेटा को एनालाइज करने के लिए। ऐसे कुछ स्टेप्स हम लोग डेटा के अंदर डेटा क्लीनिंग में करते हैं। डेटा के अंदर कुछ आउटलायर्स हैं, हमारे पास नोएडा में सेक्टर 16 में मैकडी का आउटलेट है, तो मैकडी के आउटलेट पे अपनी एक सेल हो सकती है कि एक मंथ की सेल है से 50 लाख रुपीज़, नेक्स्ट मंथ की सेल 60 लाख, नेक्स्ट मंथ की सेल 70 लाख, नेक्स्ट मंथ की सेल 30 लाख, और एक मंथ की सेल आ गई 5 करोड़। अब मैकडी का आउटलेट है, उसकी अपनी कैपेसिटी है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है, कुकिंग की, सेल की, तो 5 करोड़ हो ही नहीं सकता उसके अंदर, लेकिन 5 करोड़ आ गया। अब आपने क्या करना है कि आपकी मैकडी की साल की एवरेज सेल निकालनी है। अब आप क्या करोगे, सारे डेटा को अगर आपने एवरेज कर दिया तो 5 करोड़ वाला जो डेटा है वो पूरे एवरेज को शूट अप कर देगा, आपका एवरेज बहुत ऊपर अपर साइड में चला जाएगा। तो ये डेटा क्या है, ये गलती से आ गया, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, एक जीरो एक्स्ट्रा लग सकती है, तो क्या है, ऐसे डेटा को हम क्या बोलते हैं, आउटलायर्स बोलते हैं, जो हमारे पूरे के पूरे एनालिसिस को खराब कर देते हैं। तो ऐसे आउटलायर्स को रिमूव करना, ये सारा काम हमारा डेटा क्लीनिंग के अंदर होता है, राइट। डेटा क्लीनिंग के बाद फिर हम क्या करते हैं, डेटा को थोड़ा एनालाइज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। हमारे पास मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं, प्लॉटली लाइब्रेरी है, सीबॉर्न लाइब्रेरी है, मैटप्लॉटली लाइब्रेरी, ऐसी मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं। डेटा के अंदर ग्राफ्स के पैटर्न्स बना के, बार ग्राफ, पाई चार्ट, वॉयलन प्लॉट, ऐसे मल्टीपल हीट मैप, ऐसे प्लॉट्स बना के हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं कि हमारा डेटा हमें क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तो डेटा को हम एनालाइज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं, ठीक है। एनालाइज करने के बाद फिर हम डेटा की रिपोर्टिंग करते हैं कि अगर हमें अपनी कंपनी में कंपनी मैनेजमेंट को डेटा शो करना है तो कैसे हमें ग्राफ्स बनाने हैं, कैसे शो करना है, ये सारा काम हमारा डेटा फाइनलाइजेशन, डेटा रिपोर्टिंग स्टेप्स में आता है, ठीक है। तो ये सारा काम है एक्चुअली डेटा एनालिसिस लाइफ साइकिल का। तो अगर किसी में डेटा साइंस या एआई प्रोसेस की बात करता हूँ, सारे डेटा ड्रिवन डोमेन से डेटा चाहिए कहीं ना कहीं, हर प्रोसेस में डेटा की नीड है। तो 80% काम जो है, अगर आप एक मशीन लर्निंग की बात करते हो, एक मशीन लर्निंग एप्लीकेशन की या एक डेटा साइंस एनालिसिस की बात करते हो, तो 80% काम डेटा एनालिस्ट का होता है और 20% काम एक्चुअल में डेटा साइंटिस्ट का होता है, ठीक है। तो ये सारा काम बहुत टीडियस काम है, बहुत लॉन्ग टर्म आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है डेटा को रेडी करना, क्योंकि डेटा जनरली हमें गार्बेज फॉर्म में ही मिलता है, राइट, ठीक है। आपको एक कंपनी में आप काम कर रहे हो, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करना, डेटा की डिमांड करना, उसमें डेटा के प्राइवेसी चैलेंजेस हैं, मल्टीपल लेवल्स पे अप्रूवल्स लेना ताकि वो डेटा किस तरह से आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कहीं ना कहीं, जो आपको जो किसका काम है, फाइनली डेटा एनालिस्ट का काम है ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना और फाइनली डेटा को रेडी करना और उसके अंदर से कुछ इंसाइट्स निकालना, ठीक है। तो टारगेट क्या है जो आप लोगों ने बताया, दैट इज फाइंडिंग इंपॉर्टेंट इंसाइट्स फ्रॉम द डेटा, ठीक है। ये आपका डेटा एनालिस्ट का काम है। अब डेटा साइंटिस्ट का क्या काम है, डेटा साइंटिस्ट का क्या काम है, एडिंग, जो डेटा एनालिस्ट कर रहा है वो सारा काम तो करना ही है, ठीक है, उस सब की नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए, प्लस आपको क्या करना है, एडिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ऑन डेटा एंड स्टार्ट मेकिंग दी प्रेडिक्शंस निकालना स्टार्ट कर देना, ये आपके डेटा साइंटिस्ट का काम है। प्रेडिक्शंस, फोरकास्टिंग, ठीक है,
रिकमेंडेशंस, ये 3 टर्म्स आपको याद रखने हैं, लाइफ टाइम आपके काम आएंगे ये। फोरकास्ट करना, प्रेडिक्ट करना, रिकमेंड करना डेटा के थ्रू, ये डेटा साइंटिस्ट का काम है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, अगर आपको मशीन लर्निंग आ गया समझ लो आप डेटा साइंटिस्ट बन गए, ठीक है। तो डेटा साइंस में मेजरली हमें क्या बनना है, करना है, हमें मशीन लर्निंग पढ़ना है। इंडस्ट्री में अगर आप एज ए फ्रेशर अप्लाई करते हो, आपको मशीन लर्निंग आता है, मतलब आप डेटा साइंटिस्ट हो। और एज ए एक्सपीरियंस अगर मैं बात करता हूँ तो डेटा साइंस में साथ में एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाता है, साथ में एक्स्ट्रा डोमेन नॉलेज ऐड हो जाती है। डेटा साइंटिस्ट जनरली जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे, आप किसी फिनटेक कंपनी में काम कर रहे हो, 5 साल आपने फिनटेक इंडस्ट्री में काम किया, तो 5 साल के बाद देयर विल बी हायर चांसेस कि आपको जो फर्दर जॉब्स मिलेंगी लाइफ में वो फिनटेक इंडस्ट्री में मिलेंगी, क्योंकि आपको फिनटेक का एक्सपीरियंस हो गया। डेटा साइंस में ये सारी फील्ड्स काफ़ी डीप फील्ड्स हैं, डेटा के अंदर आपको एनालिसिस करना है, लेकिन अगर आपको डेटा की टर्मिनोलॉजीज ही नहीं पता तो आपके लिए एनालिसिस बड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो कोई अगर बैंक के लिए प्रोडक्ट बनेगी तो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले बैंकर्स को हायर करेगी, रेदर डेवलपर्स को हायर करेगी, जो ये बताएंगे कि हमें करना क्या एप्लीकेशन में। तो डोमेन नॉलेज मैटर करती है आपकी, लेकिन डोमेन नॉलेज फ्रेशर्स को नहीं होती। तो फ्रेशर डेटा साइंटिस्ट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको मशीन लर्निंग आनी चाहिए, बट एक्सपीरियंस अगर आप जनरली डेटा साइंस की जॉब देखोगे तो एक्सपीरियंस डेटा साइंस में आपको हो सकता है मिल जाए कि हमें एक डेटा साइंटिस्ट की नीड है जिसको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस उस डेटा साइंटिस्ट को ने इस फील्ड के प्रोजेक्ट्स पे काम किया होना चाहिए अपने 5 ईयर्स के टेन्योर पे, राइट, ठीक है, डन है। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगा के आपके डेटा से अंदर से प्रेडिक्शंस निकालना, फोरकास्टिंग करना, रिकमेंडेशन करना, ये सारा काम किसका है, ये सारा काम डेटा साइंटिस्ट का है, राइट, ठीक है। नाउ अब इसकी डिमांड की अगर मैं बात करूं, फोरकास्टिंग, प्रेडिक्शन, रिकमेंडेशन से होता क्या है, आपको डिमांड शायद मेरे से ज़्यादा पता होगी। एवरीवेयर देयर इज एआई। टीसीएस ने लेटली जो है कुछ टाइम पहले ही रिकमेंड किया था अपने सारे एम्प्लॉयज़ को, दे आर हैविंग 5 lakhs और 6 lakhs प्लस एम्प्लॉयज़, टीसीएस इज दैट बिग कंपनी, सारे एम्प्लॉयज़ को उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप मशीन लर्निंग एआई का कोई ना कोई कोर्स करो, ठीक है। तो सो दैट बिग द डेटा साइंस एआई इंडस्ट्री इज। आप अगर डोमेन्स की बात करो, आप जितनी मोबाइल ऐप्स देखते हो आजकल, मेजर ऐप्स में जितने आप वेब एप्लीकेशन देखते हो, आपके अंदर एप्लीकेशंस में कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन इंजन्स लगे हुए हैं, ठीक है। आप यूट्यूब अपना, सब लोग अपना अपना यूट्यूब ओपन करोगे तो हर एक को टॉप 10 टॉप 50 रिजल्ट डिफरेंट दिखाई देंगे। किस बेस पे, पहले आपके बिहेवियर से, आपके डेटा से मशीन को ट्रेन किया, यूट्यूब को ट्रेन किया, और फिर आपके म्यूजिक हैबिट्स के बेस पे आपको रिकमेंडेशन, या वीडियो हैबिट्स के बेस पे आपको रिकमेंडेशन मिलना स्टार्ट हो गया कि किस टाइप की वीडियोज आपको ज़्यादा पसंद आएंगे, राइट। आपको आपके बारे में शायद उतना ना पता हो जितना गूगल आपके बारे में जानता है, ठीक है। आपकी क्या हैबिट्स, क्या चॉइसेस, क्या हॉबीज़ हैं, शायद हमें ना पता हो कि आपसे पूछा जाए आपकी क्या हॉबी है, 1-2 हॉबीज़ आप बता दोगे, पर गूगल को आपकी हॉबीज़ आपसे ज़्यादा पता है। आज आपकी अगर हॉबी है कि आपको गैजेट सर्च करना, ठीक है, पता नहीं है पर आप फिर भी करते हो सर्च, तो आप गूगल में आप naukri.com पे जाओगे, सुलेखा.com पे जाओगे, शिक्षा.com पे जाओगे, तो आपको जनरली जो ऐड दिख रहे होंगे गैजेट्स के ऐड दिख रहे होंगे, ठीक है। तो दैट इज़ कि आपके पहले बिहेवियर से, आपकी एड चॉइसेस के बेस पे, आपकी गूगल सर्फ के बेस पे पहले गूगल ने अपने आप को ट्रेन किया, और फिर अकॉर्डिंगली गूगल एड्स जो है आपके सामने डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गए। हम लोग सेटपा में बहुत ज़्यादा गूगल एड्स देते हैं, हमारा एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जाता है सेटपा का गूगल एड्स के अंदर। तो गूगल एड्स क्या करता है, बैकग्राउंड में जब हम एड्स देते हैं तो शुरू में हमारी ऐड की कॉस्ट ज़्यादा होती है पर क्लिक। अगर कोई बच्चा सर्च करता है गूगल में पाइथन ट्रेनिंग इन नोएडा, तो हो सकता है कि गूगल एड सामने आ जाए। अगर कोई उस पर क्लिक करेगा तो गूगल को उसके लिए हमारा सेटपा से 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ के आसपास पर क्लिक की कॉस्ट होती है, वो गूगल के पास चला जाता है। लेकिन गूगल क्या करता है, ग्रेजुअली इन एड्स के बेस पे अपनी मशीन को ट्रेन करता है कि हमने जो ऐड बनाया है वो किस टाइप के कस्टमर्स को, किस टाइप के व्यूअर्स को ज़्यादा पसंद आ रहा है। धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता है, ऐड की कॉस्ट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, वो मशीन को ट्रेन कर लेता है। और क्या होता है कि पहले 1000 इंप्रेशंस मेरे ऐड के मार्केट में गए, तो अगर उस 1000 इंप्रेशंस में 10 लोगों ने क्लिक किया, तो बाद में जब मशीन ट्रेन हो जाएगी तो उन्हीं 1000 इंप्रेशंस पे 20 लोग जो है क्लिक करेंगे, तो मेरे ऐड की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो एवरीवेयर देयर इज रिकमेंडेशन इंजन इन द बैकग्राउंड। आप फ्लिपकार्ट पे जा रहे हो, आपने ब्रेड परचेज की तो बटर भी ले लो, बटर परचेज किया तो नाइफ भी ले लो। ब्रेड बटर कैसे यूज करोगे, क्या है, रिकमेंडेशन इंजन है।
naukri.com पे जाओगे, आपके प्रोफाइल के बेस पे आपके पास रिकमेंडेशंस आ रहे हैं। तो एवरीवेयर देयर इज रिकमेंडेशन इन द बैकग्राउंड। तो आपकी टेक्नोलॉजी, आपने कोई वेब एप्लीकेशन बनाई, पेटीएम ऐप बनाई, ओला उबर ऐप बनाई, ठीक है, तो आपके पास क्या है, वो जो एप्लीकेशन है वो मल्टीपल टेक्नोलॉजी से मिलके बनी होगी। उस एप्लीकेशन में जावा भी यूज हो रहा होगा, उसमें .NET भी यूज हो रहा होगा, उसमें आपका PHP भी यूज हो रहा होगा, लेकिन पाइथन तो यूज हो ही रहा होगा, क्योंकि रिकमेंडेशन इंजन बैकग्राउंड में लगा हुआ। कौन बना रहा है? पाइथन डेवलपर्स बना रहे हैं, राइट। तो wherever there is recommendation engine in a system there is Python in the background। पहले बहुत R प्रोग्रामिंग और बाकी लैंग्वेज भी ज़्यादा पॉपुलर थी, ठीक है, लेकिन अभी पाइथन का 90-95% पाइथन ही रिकमेंडेशन इंजन्स में यूज होती है, राइट। देन फोरकास्टिंग की बात करें, जितने फोरकास्टिंग सिस्टम्स हैं, आप शेयर मार्केट में देखो, शेयर मार्केट में कितने आपको जो है फोरकास्टिंग इंजन्स बने हुए हैं, आपको शेयर पर कैसा ट्रेंड होगा, शेयर अप जाएगा डाउन जाएगा, इसके लिए मल्टीपल एप्लीकेशन मार्केट में, थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं, सब किस में बनी है? पाइथन में बनी है। फोरकास्टिंग इंजन्स किस में बने हैं? पाइथन में बने हैं बैकग्राउंड में। प्रेडिक्शंस जहाँ पे आएंगे, हर जगह क्या है? बैकग्राउंड में पाइथन प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो जहाँ पे भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यूज करके अगर हम प्रेडिक्शन, फोरकास्टिंग या रिकमेंडेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? हम डेटा साइंटिस्ट बन जाते हैं, राइट, ठीक है। कोई डाउट है? अब ये तो हो गई एक डेफिनेशन, ये आपने कुछ बच्चों ने ऑलरेडी मुझे भी बताई, सबकी डेफिनेशन सही है, किसी की डेफिनेशन में कोई एरर नहीं है, लेकिन ये डेफिनेशन हो गई। अब एक्चुअली क्या डिफरेंस है डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस में? अगर मैं लाइव लेमन लैंग्वेज की टर्म में बात करूं तो 2014 में इलेक्शंस हुए, हु वॉन द गेम? इन द सेंटर बीजेपी, ठीक है। 2019 में इलेक्शंस हुए, ठीक है। 2023 में इलेक्शंस हुए, हु वॉन द गेम? बीजेपी, ठीक है। बीजेपी का मैं कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, चिंता मत करो। तो हु वॉन द गेम? बीजेपी। वाई बीजेपी वॉन? कौन बताता है? डेटा एनालिस्ट बताता है। तो डेटा एनालिस्ट का काम क्या है? टू एनालाइज पास्ट डेटा। 24 में, सॉरी, हाँ जी, ठीक है, अभी हुआ, ठीक है। वाई बीजेपी वॉन? टू एनालाइज पास्ट डेटा और टू, ठीक है, फाइंड इफ समथिंग हैपेंड देन व्हाई इट हैपेंड, ठीक है। आपके पास के डेटा को एनालाइज करना, ये हुआ तो क्यों हुआ, ये आपका कहीं ना कहीं किसका काम है? डेटा एनालिस्ट का काम है, ठीक है। एक न्यूरुलस आइसक्रीम की फैक्ट्री है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे समर इंक्रीज हो रही है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, समर सीजन आ रहा है, तो क्या हो रहा है? हमारा सेल इंक्रीज हो रही है। तो एवरीवन इज डेटा एनालिस्ट, कोई भी बता देगा कि क्या है ये, क्यों सेल इंक्रीज हो रही है? टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तो क्या है, किसका काम है? डेटा एनालिस्ट का काम है। तो ये तो एक बेसिक एप्लीकेशन हो गई, बट अगर आप एडवांस लेवल एप्लीकेशन में बात करो इलेक्शंस की, ऐसा हुआ तो सेंटीमेंट्स को चेक करना, मूड्स को चेक करना, डेटा निकालना, एक्स प्लेटफॉर्म, ट्विटर प्लेटफॉर्म से डेटा को निकालना और उसके बेस पे एनालिसिस करना, ये सारा काम डेटा एनालिस्ट का काम है। लेकिन 2029 में शायद फिर इलेक्शंस हो, ठीक है। हु विल विन द गेम? कौन बताएगा? डेटा साइंटिस्ट बताएगा, ठीक है। कौन बताएगा? डेटा साइंटिस्ट बताएगा। तो 2029 में फिर इलेक्शंस होंगे, तो कौन गेम जीतेगा, ये काम किसका है? डेटा साइंटिस्ट का है। तो जहां भी रिकमेंडेशंस हैं, फ्यूचर फोरकास्टिंग है, फ्यूचर रिकमेंडेशंस हैं, प्रेडिक्शंस हैं, वहां पे कौन बैठा है पीछे? डेटा साइंटिस्ट बैठा है। वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाता है और आपको प्रेडिक्शंस करके दे देता है। और जहां पे आप पास के डेटा को एनालाइज कर रहे हो, तो कौन कर रहा है? वो डेटा एनालिस्ट कर रहा है, ठीक है। कोई डाउट समझ में आ गया? डेटा एनालिसिस वर्सेस डेटा साइंस। तो आपने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली। अब मशीन लर्निंग में होता क्या है? आपको डेटा एनालिसिस का लाइफ साइकिल तो समझ में आ गया कि डेटा एनालिस्ट डेटा को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। बट मशीन लर्निंग में बैकग्राउंड में क्या होता है, कैसे मशीन लर्निंग काम करती है, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं मशीन लर्निंग के बारे में। क्या डेफिनेशन होती है मशीन लर्निंग की? राइट, एनीवन एल्स? वेरी गुड। मशीन लर्निंग, लर्निंग ऑफ मशीन इज मशीन लर्निंग।
ठीक है। मशीन लर्निंग, लर्निंग ऑफ मशीन इज मशीन लर्निंग, और मशीन मतलब यहाँ पे कोई हार्डवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। आईटी डोमेन की बात करें, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग है, ये आईटी डोमेन से है। तो जहाँ मशीन वर्ड आएगा वहाँ पे आईटी एप्लीकेशन की बात हो रही होगी, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर की बात हो रही होगी। तो लर्निंग ऑफ मशीन इज मशीन लर्निंग, मशीन को, ठीक है, एंड, हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एनीवन एल्स, ऑनलाइन स्टूडेंट बताओगे आप लोग मशीन लर्निंग की डेफिनेशन, या व्हाट डू यू मीन बाय मशीन लर्निंग? हाँ जी, या ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू देयर टू टीच मशीन? वेरी गुड, राइट शोएब। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, इंटरव्यू क्लियर करना है मुझे, आप लोगों को ट्रेनिंग नहीं देनी है खाली, ठीक है। आई हैव टू मेक यू गाइज प्लेसेबल, प्लेसेबल बनाना है मुझे आप लोगों को। उस प्लेसेबल बनाने के लिए इवन मैं आपको ये भी स्टेप्स बताऊंगा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में कैसे प्लेस होना है, उसका क्या रोड मैप होना चाहिए, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको आंसर देने हैं बस। वी कैन से इट मैनेजिंग ऑफ डेटा, राइट, टू टीच मशीन, राइट, डेटा कलेक्शन, राइट शैमा, एनीवन एल्स? मशीन लर्निंग इज लर्निंग ऑफ मशीन, इज मशीन लर्निंग, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ द मशीन एंड गेटिंग द प्रेडिक्शंस, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ द मशीन, मशीन को ट्रेन करना और उससे प्रेडिक्शंस निकालना, ये किसका काम है? ये मशीन लर्निंग का काम है, ठीक है। अब मैं एक कोई एप्लीकेशन एक बार देखता हूं। तो मैंने एक मेरा फेवरेट डायलॉग मैंने खुद बनाया है, दैट इज हर डेटा कुछ कहता है। अब वो क्या कहता है हम प्रेडिक्ट कर पाए नहीं कर पाए, दैट इज नॉट गारंटी, लेकिन हर डेटा हमें कुछ बताने की कोशिश करेगा, राइट, ठीक है। तो हमारे पास ठीक है, मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग ऑफ द मशीन एंड गेटिंग द प्रेडिक्शंस, मशीन को ट्रेन करना और उससे प्रेडिक्शन निकालना। अब ये तो डेफिनेशन हो गई। एग्जैक्टली मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेटा सेट अवेलेबल है, ठीक है। एक जो है हमारी इंडियन आर्मी ने क्या किया, एक सेंसर लगा दिया, पाकिस्तान में फिट कर दिया, और वो सेंसर हमें कुछ डेटा भेज रहा है किसी एनवायरनमेंट के बेस पे, एनवायरनमेंट वेरिएबल के बेस पे, टेम्परेचर के बेस पे, या ह्यूमिडिटी के बेस पे, या विंड स्पीड के बेस पे एक सेंसर हमारे पास इंडिया में कोई डेटा भेज रहा है, जिसमें कुछ इनपुट्स जा रहे हैं और इनपुट्स के बेस पे हमारे पास कुछ आउटपुट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इंडियन आर्मी हमारे पास आती है, कहती है कि हमारा वो सेंसर खराब हो गया, अब हम दोबारा फिट कर नहीं पा रहे वहाँ पे जहाँ पे हमने फिट किया था, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही, क्या कर सकते हैं? लेकिन हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है, ठीक है। तो इस डेटा के बेस पे जो इनपुट्स और आउटपुट्स हमारे पास अवेलेबल है, इंडियन आर्मी क्या चाहती है कि इस डेटा के बेस पे मैं कोई भी इनपुट दूं, मुझे अकॉर्डिंगली आउटपुट मिल जाए मेरे मशीन लर्निंग मॉडल के थ्रू, ठीक है। तो क्या पर्पज है? पहले इस डेटा से मशीन को ट्रेन करना और फिर उससे प्रेडिक्शंस निकालना, ठीक है। तो जो बच्चे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं, या चलो जो बच्चे किसी भी बैकग्राउंड के हैं, पहले आप क्या बता सकते हो डेटा सेट आपको क्या बताना चाह रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये डेटा सेट आपको क्या बता रहा है? थोड़ा ध्यान से देखो, हाँ जी, मल्टीप्लाई हो रहा है आउटपुट का, इनपुट से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 6 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 24 इक्वल्स टू इनपुट मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस आउटपुट, ऐसा ही हो रहा है, 24 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो ये कोई स्टैंडर्ड डेटा सेट है? कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा सकते हो आप इसमें ऑनलाइन स्टूडेंट्स?
क्या कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा सकते हो आप इसमें, बताओ मुझे। नहीं बच्चे, मैं म्यूट पे तो नहीं। बाकी बच्चों को श्योर मेरी वॉइस आ रही है, आप रीज्वाइन कर लो या अपना इंटरनेट चेक करो। या बताओ ये डेटा सेट क्या बता रहा है, कोई स्टैंडर्ड डेटा सेट है ये, कौन सा स्टैंडर्ड डेटा सेट है? हाँ जी, कौन सा डेटा सेट है ये? बड़ा सिंपल डेटा, इससे सिंपल डेटा नहीं हो सकता आपकी लाइफ में, आपको इससे सिंपल डेटा नहीं मिलेगा। कौन सा डेटा है ये? फैक्टोरियल का डेटा है। फैक्टोरियल 4 मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 24। फैक्टोरियल 5 मीन्स 120। ये फैक्टोरियल नंबर्स तो आपको याद होने चाहिए, देखते हुए जाना चाहिए। अच्छा 24, 120, 720 क्या है? फैक्टोरियल है। इतनी मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोग को अगर डेटा अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनना है, ठीक है राइट। तो क्या है ये डेटा? ये हमारे पास एक फैक्टोरियल का डेटा है। एग्री ऑनलाइन स्टूडेंट्स? डू यू एग्री दैट दिस इज फैक्टोरियल डेटा? राइट, ठीक है, ग्रेट। चलिए, तो ये फैक्टोरियल डेटा है। अगर आपके पास अब कोई बच्चा जिसने पहले से प्रोग्रामिंग पढ़ी है, ठीक है, किसने पहले से प्रोग्रामिंग पढ़ी है, आपके पास कोई क्लाइंट आता है जो कहता है मेरे पास ये डेटा सेट अवेलेबल है और मैं क्या चाहता हूं कि इस डेटा सेट के बेस पे मैं नए इनपुट्स दूं और मुझे फ्यूचर प्रेडिक्शन मिलने स्टार्ट हो जाएं, मुझे फर्दर आउटपुट्स भी ऑटोमेटिकली मिलने स्टार्ट हो जाएं इनपुट्स के बेस पे। तो कैसे आप इसके लिए प्रोग्राम बना सकते हो? सी, जावा, पाइथन, पीएचपी का यूज करके कैसे आप इस डेटा सेट के लिए प्रोग्राम बना सकते हो? हाँ जी, क्या यूज करोगे आप लोग? हाँ जी, फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना देंगे। क्या करोगे? लूप्स का यूज कर लोगे। जिनको प्रोग्रामिंग आती है, पहले जिनको नहीं आती कोई चैलेंज नहीं है, जिनको प्रोग्रामिंग आती है तो प्रोग्रामिंग में हमारे पास लूप्स के या फिर राइट कुनाल रिकर्सन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। लूप या रिकर्सन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, लूप के अंदर आप इनपुट पास करोगे 5 तो लूप 5 टाइम्स रन होगा और रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय टर्म दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हमें आउटपुट मिलेगा और उसको हम डिस्प्ले करा देंगे स्क्रीन के ऊपर। एग्री? ठीक है। तो ये आपके पास एक डेटा सेट आया और आपको बोला गया आपके पास, तो आपने क्या किया? अरे ये तो बड़ा सिंपल है। मैंने सबसे पहले आपने एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपने क्या किया? पहले रिलेशनशिप ढूंढा, अच्छा फैक्टोरियल का रिलेशनशिप है, फैक्टोरियल के लिए प्रोग्राम लिख दिया और उसको पकड़ा दिया। अब इसमें कोई भी इनपुट पास करो आपको प्रेडिक्ट हो जाएगा कि आउटपुट क्या आने वाला है। राइट, एग्री? ठीक है। लेकिन आपके पास क्या होता है, डेटा सेट ही चेंज हो जाता है, आपके पास एक नया डेटा सेट आता है, आपके पास ये डेटा सेट आ जाता है। अब आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आपके पास डेटा सेट आ गया, फिर आपको बोला गया कि अब आप दोबारा से ट्राई करो, बताओ कि ये डेटा सेट आपको क्या बताना चाह रहा है। इसके लिए आपके पास क्लाइंट कहता है कि मेरे पास एक डेटा सेट अवेलेबल है, मुझे एक प्रोग्राम, एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल बना के दो कि मैं कोई भी नया इनपुट पास करूं और मुझे प्रेडिक्ट हो जाए कि आउटपुट क्या मिलने वाला है, एक अप्रोक्सीमेट आउटपुट मुझे मिल जाए। राइट? तो क्या कोई रिलेशनशिप आपको दिखाई दे रहा है इस डेटा सेट में? तो हर डेटा कुछ कहता है पर ये डेटा हमें बता नहीं रहा कि क्या कहना चाहता है। एग्री? विद ह्यूमन ब्रेन हमारे लिए डिफिकल्ट है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ब्रेन में कर पाना कि डेटा के अंदर क्या रिलेशनशिप है। वो फैक्टोरियल की रिलेशनशिप है, वो लीनियर रिलेशनशिप है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू 2x प्लस 5 जहाँ पे x क्या है, इनपुट है, या y इक्वल्स टू 3x प्लस 7। वो रिलेशनशिप क्या कोई बाइनोमियल रिलेशनशिप है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, या वो कोई फोरियर ट्रांसफॉर्म या लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो ये हमारा ह्यूमन ब्रेन को यूज करके ये डेटा सेट के अंदर से रिलेशनशिप ढूंढना डिफिकल्ट है। तो अभी तक हमारे पास इंडस्ट्री में जब हम लोग काम करते थे तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग कैसे होती थी, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कैसे काम करते थे? सॉफ्टवेयर डेवलपर्स काम करते थे कि उनके पास कोई डेटा सेट आता था तो पहले वो डेटा सेट के बीच में रिलेशनशिप ढूंढते थे। क्या रिलेशनशिप आया? फैक्टोरियल का रिलेशनशिप आया। तो उन्होंने एक प्रोग्राम बना दिया पाइथन, जावा, सी का यूज करके, जिसके अंदर इनपुट प्रोवाइड किया
और फैक्टोरियल का प्रोग्राम प्रोवाइड कर दिया। अब जब भी नया इनपुट आएगा, फैक्टोरियल का प्रोग्राम आपने ऑलरेडी बना दिया है, उस प्रोग्राम के पास इनपुट जाएगा और आउटपुट मिल जाएगा। दिस वॉज कॉल्ड द ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोग्रामिंग। बट व्हाट इज मशीन लर्निंग वे ऑफ प्रोग्रामिंग? मशीन लर्निंग क्या कहता है? मशीन लर्निंग कहता है कि यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, यू आर नॉट अ मैथमेटिशियन। ठीक है, तो ये जो काम हम रिलेशनशिप ढूंढ रहे थे, ये हमारा काम नहीं है, ये सॉफ्टवेयर का काम है, ये मशीन का काम है। लेट मशीन ट्राई टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अब ये काम हमें नहीं करना, हमें क्या करना है? सबसे पहले मशीन लर्निंग क्या कहता है? ट्रेनिंग ऑफ द मशीन। एक पार्शियल डेटा से मशीन को ट्रेन करो। मीन्स जो भी आपके पास 5 इनपुट्स 5 आउटपुट्स या 50 इनपुट्स 50 आउटपुट्स आपके पास अवेलेबल है, उससे मशीन को ट्रेन करो। अब आपकी मशीन आपके लिए क्या बनाएगी? वो रिलेशनशिप ढूंढ के आपको देगी, वो फंक्शन आपको, वो कोड आपको बना के मशीन देगी, हमें नहीं बनाना। हमारा काम है एक पार्शियल डेटा देना जिससे मशीन ट्रेन होगी और मशीन निकालेगी कि अच्छा रिलेशनशिप फैक्टोरियल है या लाप्लास है या फोरियर है या क्या है, या y इक्वल्स टू एक्स प्लस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। मशीन निकालेगी कि उस ए बी सी की वैल्यू क्या है। अब मशीन ने वो रिलेशनशिप ढूंढ लिया, वो प्रोग्राम बना दिया, वो एल्गोरिथम डेवलप कर लिया। अब आप कोई भी नया इनपुट मशीन को दोगे तो आपकी मशीन उस एल्गोरिथम ऑलरेडी डेवलप्ड है, उस एल्गोरिथम के पास इनपुट जाएगा और अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो मशीन लर्निंग वे ऑफ प्रोग्रामिंग इज where you train the machine with the data, with the partial data that is called a training data set. पहले आप ट्रेनिंग डेटा से मशीन को ट्रेन करते हो, एक बार मशीन ट्रेन हो गई, एल्गोरिथम डेवलप हो गया, अब आप कोई भी नया इनपुट देते हो, एल्गोरिथम के पास जाता है और आपको आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड दी मशीन लर्निंग वे ऑफ प्रोग्रामिंग। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो मशीन लर्निंग की लेमन टर्म्स में अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, दैट इज ट्रेनिंग ऑफ द मशीन एंड गेटिंग द प्रेडिक्शंस। मशीन को ट्रेन करना पार्शियल डेटा से और उससे फिर प्रेडिक्शन निकालना स्टार्ट कर देना, ये सारा काम आपका क्या है? मशीन लर्निंग का है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन मशीन लर्निंग की है। अब आप कोई भी एप्लीकेशन की बात करो जहां रिकमेंडेशन इंजन है, प्रेडिक्शन सिस्टम्स है, ठीक है, कि आपके पास क्या है? कैट्स और डॉग्स की फोटोज आपको दे दी गई, 100 कैट्स की 100 डॉग्स की। पहले मशीन को ट्रेन कर दिया, अब एक नई कैट की फोटो दी और पूछा बताओ कैट की है डॉग की? अगर मशीन ने प्रेडिक्ट कर लिया, आपने मशीन लर्निंग मॉडल बना लिया। जहां भी प्रेडिक्शन आएगा मशीन लर्निंग है। गूगल एड्स है, रिकमेंडेशन इंजन हैं, चैटबॉट्स हैं, हर जगह क्या है? बैकग्राउंड में मशीन लर्निंग लगी हुई है, डेटा साइंस प्रोसेस बैकग्राउंड में रन हो रहा है। एग्री? कोई डाउट है तो बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन, एनी डाउट टिल नाउ? प्रियंका को कोई डाउट नहीं है, शाइमा को डाउट नहीं है, राइट? एनीवन एल्स? कुणाल को डाउट नहीं है? अटेंडेंस ले रहा हूं मैं आप लोग की, आपके पेरेंट्स को भेजूंगा, फिर जल्दी से यस या नो लिखो। ये नहीं करना कि क्लास ऑन करके सोने चले जाना। ठीक है शोएब, वेरी गुड, राइट, ठीक है, सोने नहीं दूंगा मैं आप लोग को। चलिए, तो हमारे पास मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट मशीन को ट्रेन करना और उससे प्रेडिक्शन निकालना। अब जितने भी आप एप्स देखते हो हर जगह क्या है? मशीन लर्निंग का टारगेट क्या है? मशीन लर्निंग का टारगेट है रिप्लेसिंग मैन विथ मशीन्स। रिप्लेसिंग मैन विथ मशीन्स, धीरे धीरे ग्रेजुअली। अगर मैं बात करूं, मशीन लर्निंग का काम है रिप्लेसिंग मैन विथ मशीन्स। तो क्या कुछ ऐसे मुझे एग्जांपल्स आप बता सकते हो जहां पे मैन ऑलरेडी मशीन से रिप्लेस हो चुका है? कुछ ऐसे ड्रास्टिक डोमेन्स जहां पे बहुत बिग लेवल पे, ड्रास्टिक लेवल पे चेंजेस हुए और आपकी जॉब्स खत्म हो गई इंडस्ट्री में, ऐसे कुछ डोमेन्स आप बता सकते हो मुझे? मशीन लर्निंग के कुछ एप्लीकेशंस मुझे बता सकते हो आप लोग? राइट, एआई में मुझे एप्लीकेशन बताओ एग्जैक्टली शाइमा, कौन सी एप्लीकेशन है? वेरी गुड, चैट जीपीटी, क्लाउड एआई, ब्लैक बॉक्स एआई। ठीक है, कैसे जॉब ये रिप्लेस कर रहे हैं? चैट जीपीटी ने कौन सी जॉब्स को रिप्लेस किया है? बच्चे स्कूल तो अभी भी जा रहे हैं, पढ़ तो अभी भी रहे हैं, जॉब तो अभी भी कर रहे हैं। चैट जीपीटी ने कैसे इम्पैक्ट किया जॉब्स को? कौन सी जॉब्स ज्यादा इम्पैक्ट हुई हैं चैट जीपीटी से? लॉजिक सर्च हो जाते हैं, राइट। जॉब्स बताओ मुझे जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुई चैट जीपीटी की वजह से।
या कोई और एप्लीकेशन बताओ जहाँ जॉब्स खत्म हुई है। हाँ जी, देखो मैकडी में जो मशीन्स लगी है ना वो एआई की एप्लीकेशन नहीं है, वो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उसमें एआई का कोई रोल नहीं है। वो एप्लीकेशन तो पहले भी बनती थी एआई से पहले भी, एक नॉर्मल एप्लीकेशन है जहाँ पे कोई प्रेडिक्शन नहीं हो रहा। पहले से आपने क्या किया हुआ है, पहले से आपने फीड किया हुआ है कि इस प्रोडक्ट का कॉस्ट ये है, इस प्रोडक्ट का कॉस्ट ये है, इस प्रोडक्ट का कॉस्ट ये है, इफ एल्स कंडीशन लगी है, इफ अगर इस चीज का ऑर्डर आता है तो उसका प्राइस ये है। एक वेरिएबल बना हुआ है, जो वेरिएबल क्या कर रहा है, सारे प्राइस को और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट दे रहा है, तो उसके अंदर कोई एआई नहीं है। चैटबॉट आता है उसके वजह से पहले किसी को डाउट होता था कॉल करते थे, जिसकी एप्लीकेशन से अप्लाई करना। यस, डेटा एंट्री जॉब्स और आपकी चैटबॉट्स की वजह से वर्ल्ड के सबसे ज्यादा कॉल सेंटर्स बीपीओ कौन सी कंट्री में है? हाईएस्ट नंबर ऑफ बीपीओस आर इन विच कंट्रीज? इंडिया। वाई? इंडिया में क्यों है? यस, वेरी गुड शोएब। इंडिया में क्यों है? पाकिस्तान में क्यों नहीं है? वेरी गुड। यहाँ पे पहली चीज क्या है, अगर मैं एक एरिया में बात करूं कितनी जॉब्स, अगर एक पर्टिकुलर एरिया है 500 किलोमीटर्स का, तो पाकिस्तान में कितनी बीपीओ उस एरिया के अंदर और इंडिया में कितनी है, तो आपको ज्यादा इंडिया में मिलेंगी। क्यों मिलेंगी इंडिया में ज्यादा? पॉपुलेशन तो वहां पे भी है। क्या रीजन है? चीप मैन पावर प्लस चीप मैन पावर नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान सब जगह है, इंडिया से ज्यादा सस्ती है। बट इंडिया में ही क्यों है? चीप मैन पावर प्लस स्किल्ड मैन पावर का जो कॉम्बिनेशन है वर्ल्ड में हाईएस्ट इंडिया के पास है। ये जो कॉम्बिनेशन है वर्ल्ड में हाईएस्ट इंडिया के पास है। ठीक है, अगर यूएस में कोई वॉशिंग मशीन खराब होगी तो कॉल इंडिया में लैंड होगी, क्योंकि सारे कॉल सेंटर्स इंडिया में, यूएस में कोई कॉल सेंटर नहीं। राइट, ठीक है। तो दैट इज कि चीप मैन पावर प्लस स्किल्ड मैन पावर का कॉम्बिनेशन इंडिया में, इसलिए बीपीओ ज्यादा इंडिया में। लेकिन चैटबॉट्स ने इस इंडस्ट्री को ड्रास्टिकली इम्पैक्ट किया है, ड्रास्टिकली इम्पैक्ट किया है। ठीक है, पहले आपको स्पेशली अगर मैं टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्सेशन की बात करता हूँ, आप चैटबॉट्स तो पहले भी आपके पास जो है चैट बॉक्स बने होते थे डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या होता था, कोई पर्सन बैकग्राउंड में आंसर दे रहा होता था। लेकिन अभी क्या है, सब जगह चैट बॉक्स की जगह चैट बॉट्स लग गए जो एआई बेस्ड है। एक ही क्वेश्चन को पूछने के मल्टीपल वेज हैं, थाउजेंड्स ऑफ वेज हैं, लेकिन बैकग्राउंड में डेटाबेस में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर्स पड़े हैं, लेकिन जो नया क्वेश्चन आपने पूछा वो किस क्वेश्चन से मैच कर रहा है, कितना परसेंट मैच कर रहा है, अच्छा इतना परसेंट से ऊपर मैच कर रहा है तो इसका ये आंसर होना चाहिए। वो आंसर एआई के थ्रू डेवलप करना और आपको देना, ये सारा काम चैटबॉट्स का है। तो वो क्या है, एआई बेस्ड एप्लीकेशंस है। तो कॉल सेंटर की दुनिया जो बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हुई है, किसके थ्रू, किसकी वजह से? चैटबॉट्स और एआई की वजह से। राइट, जितनी भी मोनोटोनिक जॉब्स हैं, ठीक है, जितनी भी मोनोटोनिक जॉब्स हैं जहाँ पे कुछ नया सीखने के लिए नहीं है, नया करने के लिए नहीं है, और कंप्यूटर ओरिएंटेड जॉब्स हैं, ठीक है, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी की सारी इम्पैक्ट हो रही है एआई की वजह से। चाहे वो इवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री हो, एक हाई लेवल इंडस्ट्री हो, या फिर एक कोई नॉर्मल कॉल सेंटर की इंडस्ट्री हो, इवन मेडिकल की इंडस्ट्री हो, हेल्थ केयर की इंडस्ट्री हो, वो भी इम्पैक्ट हो रही है। ठीक है, अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं, इंडिया में हम लोग बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर्स के पास जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर को हम अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, डॉक्टर हमें सोल्यूशन बताता है, रिकमेंड करता है, मेडिसिन के बारे में बताता है। ठीक है, यूएस में लोग बीमार पड़ते हैं तो हेल्थ केयर एप्लीकेशंस के पास जाते हैं, मोबाइल में ही एप्लीकेशन है, ट्राई करते हैं कि पहले इसी से ही काम हो जाए, हमें जाना ही ना पड़े डॉक्टर के पास। तो क्या बेटर है, एक फिजिकल डॉक्टर को विजिट करना या एक मोबाइल एप्लीकेशन से आंसर लेना? कौन सी चीज बेटर है? फिजिकल इज मोर इम्पोर्टेंट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इनिशियली एप्लीकेशन इज बेटर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। एक आपके पास मेडिकल की एआई एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप देखो, गोन आर द डेज कि आपको डॉक्टर जो है नब्ज देख के आपका चेहरा पढ़ के बता देते थे आपको ये बीमारी है। ठीक है, हमारा सेट मतलब मेरा जो एंसेस्टर का जो प्रोफेशन रहा है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर रहा है। तो मेरे दादाजी, मेरे परदादा जी, ग्रेट ग्रैंडफादर वाज
आयुर्वेदिक डॉक्टर इन पाकिस्तान। तो हम लोग जब ये 1947 में पार्टीशन हुआ तो फिर वी आर पंजाबी, तो वी माइग्रेटेड टू इंडिया। तो फिर उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर, मेरे अंकल अभी सब जो है आयुर्वेदिक बिजनेस रन करते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, राइट। तो मेरे दादाजी बता देते थे चेहरा पढ़ के भी कि क्या प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है, तो इज नो मोर। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपसे ही पूछेगा बताओ आपको क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है। यू विल से कि आपको यू आर फीलिंग कफ, कोल्ड, नोजिया, कुछ टेम्परेचर है, कोई चैलेंज है, उसके बेस पे या तो रिकमेंड करेगा आपको मेडिसिन, या फिर वो बोलेगा आपको कुछ लैब टेस्ट करो, उस लैब टेस्ट के बेस पे, पैथोलॉजी टेस्ट के बेस पे आपको रिकमेंड करेगा, क्या आउटपुट्स आ रहे हैं उसके बेस पे आपको रिकमेंड करेगा मेडिसिन, ठीक है। लेकिन यही काम आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप मोबाइल ऐप को बता रहे हो कि मुझे कफ है, कोल्ड है, नोजिया है, ठीक है, और वो आपको मोबाइल ऐप बता रही है कि अच्छा आपको ये चैलेंज है, मोबाइल ऐप को रिकमेंड करेगी कि टेस्ट कराओ। घर पे टेस्ट बुक हो जाएगा, घर पे आपके पास रिपोर्ट उस मोबाइल ऐप से इंटीग्रेट हो जाएगी, वो आपकी मोबाइल ऐप ही रीड करेगी उस रिपोर्ट को, और उस रिपोर्ट को रीड करके आपको बता देगी आपको ये चैलेंज, और मेडिसिन भी रिकमेंड कर देगी, और होम डिलीवरी है, मेडिसिन भी घर पे आ जाएगी। डॉक्टर्स की जॉब खत्म। व्हाट इज बेटर, फिजिकल डॉक्टर्स या फिर मोबाइल एप्स? द पीपल यूजिंग ऐप लाइक प्रैक्टो एंड अदर, सो डॉक्टर नो अबाउट द पेशेंट। नहीं शायमा, वो तो एक वो आपकी एआई की एप्लीकेशन नहीं है। प्रैक्टो पे तो आप डॉक्टर, फिर फिजिकल डॉक्टर को ही विजिट कर रहे हो, ऑनलाइन विजिट कर रहे हो बस। लेकिन मोबाइल ऐप में डॉक्टर का कोई इंटरवेंशन ही नहीं है। आप मोबाइल ऐप को बता रहे हो आपको ये प्रॉब्लम है, मोबाइल ऐप आपसे फिर कुछ और क्वेश्चंस पूछेगी, जैसे डॉक्टर्स पूछते हैं कि अच्छा कफ ज़्यादा इवनिंग में होती है, मॉर्निंग में होती है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस के आप आंसर्स दोगे, फिर आपको रिकमेंड करेगी कि आपको टेस्ट कराने हैं, या डायरेक्टली वो आपको मेडिसिन रिकमेंड कर देगी। तो विच इज़ बेटर? अगर आपसे लाइफ में कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फिजिकल पर्सन, एक लाइव पर्सन इज बेटर या फिर आपकी ऐप बेटर है, आपकी एआई एप्लीकेशन बेटर है, तो आपको क्या आंसर देना है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ डेटा एंड द क्वालिटी ऑफ एल्गोरिथम। एक अच्छी एआई एप्लीकेशन तभी बन सकती है अगर आपके पास डेटा की क्वालिटी है। अगर आपके पास क्वालिटी डेटा नहीं है, आपके पास जो टेस्ट डेटा है उसी में ही एरर्स हैं, तो आप कभी अच्छी एआई एप्लीकेशन नहीं बना सकते। अगर आपके पास एक लिमिटेड डेटा है, आपके पास 50, 100, 500 नंबर्स का डेटा है, तो कभी अच्छी एप्लीकेशन नहीं बन सकती। आपके पास मार्क्स डेटा होना चाहिए पहले मशीन को ट्रेन करने के लिए, और आपका एल्गोरिथम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो आप कह सकते हो कि द मोबाइल ऐप इज मच बेटर देन द फिजिकल डॉक्टर। IBM का अपना एक सर्वर है, IBM वाटसन के नाम से, उसने अपनी एक हेल्थ केयर एप्लीकेशन बनाई है, और उस हेल्थ केयर एप्लीकेशन को वर्ल्ड के टॉप स्पेशलिस्ट से कंपटीशन कराया गया डॉक्टर से, और जो रिकमेंडेशंस थे वो मोबाइल ऐप के बेटर थे उन डॉक्टर्स के कंपैरिजन में। क्यों बेटर थे? कि एक ह्यूमन डॉक्टर, हम बोलते हैं जनरली अ यंग इंजीनियर इज अ गुड इंजीनियर एंड अ सीनियर डॉक्टर इज अ गुड डॉक्टर, क्योंकि सीनियर डॉक्टर ने लाइफ में ज़्यादा लोगों की जान ली होती है, उसको पता होता है कब मैंने क्या गलतियाँ की थी, कौन सी मेडिसिन गलत दे दी थी, क्या हुआ था। तो जब भी आप एक सीनियर डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या करता है, अपने माइंड में एआई लगाता है और आपको रिकमेंड कर देता है। उसके माइंड में 5,000, 10,000, 20,000 पेशेंट्स का डेटा घूमता है, और आपको रिकमेंड कर देता है कि आपको ये प्रॉब्लम है। लेकिन IBM ने क्या किया, इंडिया में तो अभी भी हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन चलते हैं, US में नहीं चलते, अलाउड ही नहीं है हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन। वहाँ पे हर एक सिटीजन का सारा डेटा, आप किसी सीनियर डॉक्टर के पास जाते हो, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, तो कम से कम आधा एक घंटा आपसे हिस्ट्री पूछता है आपकी, लेकिन उसके अंदर हर सिटीजन की सारी हिस्ट्री पहले से फीड है। उसको लाइफ में सब लोग जो है कुछ ना कुछ रिस्ट बैंड्स यूज़ करते हैं, ऐसी जो है पूरे बॉडी का आपका जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो सारी रिकॉर्डों के सर्वर पे जाती रहती हैं। सारी ऐप्स को इंटीग्रेट कर दिया उसने, सारा डेटा किस पर्सन का, जब उसकी एज 5 ईयर्स थी तो उसके बॉडी का टेम्परेचर क्या था, उसका हार्ट बीट क्या था, उसकी हेल्थ कंडीशन क्या थी, उसको लाइफ में कब कौन से मेजर चैलेंजेस हुए थे, उसने कब कब क्या क्या टेस्ट कराए थे, उन सब टेस्ट की क्या टेस्ट रिपोर्ट्स थी, वो सारा डेटा से उसने क्या किया, IBM वाटसन को फीड कर दिया। अब उसके जो रिकमेंडेशंस हैं, दोज आर मच बेटर देन दी फिजिकल डॉक्टर्स। आर यू गेटिंग दिस? तो AI दैट, अगर मैं बोलूं कि दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जहां पे आदमी लाइफ में सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर सकता है, तो दैट इज हेल्थ केयर इंडस्ट्री। जब सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया पे राज किया, अलेक्जेंडर द, ठीक है, अलेक्जेंडर जब जाने वाला था तो उसने बोला कि मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लो, मुझे बचा लो, ठीक है। तो दैट बिग द हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, हमने कोविड में देखा ही है, ठीक है, कि सारा पैसा, हर चीज दैट वाज सेकेंडरी, दैट द हेल्थ इज द प्राइमरी कंसर्न, ठीक है।
तो दैट बिग द हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, बट डॉक्टर्स की जॉब खतरे में है, किसकी वजह से? एआई की वजह से। तो जहाँ सर्विस ओरिएंटेड जॉब्स हैं, ठीक है, वहाँ पे कहीं ना कहीं, या इवन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी सारे प्रोसेस ऑटोमेट हो रहे हैं, सब जगह बैकग्राउंड में एआई आ रहा है, राइट? ठीक है, इतनी सारी जॉब्स में मार्केट में, इंडस्ट्री में फायरिंग हो रही है क्योंकि प्रोसेस को कंपनियां ऑटोमेट करने की कोशिश कर रही हैं। चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो पहले ही एआई से ऑटोमेट हो चुकी हैं, लेकिन जो सर्विस इंडस्ट्री है वो भी ग्रेजुअली ऑटोमेट हो रही हैं अब एआई के थ्रू, और जिससे जॉब्स आपकी खत्म हो रही हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री हो, एविएशन इंडस्ट्री हो, आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, सारी इंडस्ट्री ऑटोमेट हो रही है एआई के थ्रू। एग्री? ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया हमने लिया कि अगर आपको टेलीकॉम की नॉलेज है, यू आर एन इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, आपको टेलीकॉम अच्छे से आता है, तो आप टेलीकॉम कंपनी में जाके अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मशीन लर्निंग एआई आता है, तो दुनिया की हर कंपनी में जितनी रिकमेंडेशन इंजन्स बन रहे हैं, जितनी एमएल की एप्स बन रही हैं, वेब एप्लीकेशन बन रही हैं, सब में क्या यूज़ हो रहा है? पाइथन यूज़ हो रहा है, सब में एमएल एआई यूज़ हो रहा है। जितनी आपकी वेबसाइट बन रही है, जितनी आपकी मोबाइल ऐप्स हैं, रिकमेंडेशन इंजन्स लगे हुए हैं, यूट्यूब में, स्विगी में, हर जगह क्या लगा है? बीच में बैकग्राउंड में मशीन लर्निंग डेवलपर्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा जितने इंडस्ट्री में, ऐसी दुनिया की कोई इंडस्ट्री नहीं है जो डेटा साइंटिस्ट हायर नहीं करती है। हर इंडस्ट्री के पास एक बहुत बड़ा नंबर है डेटा साइंटिस्ट का। अगर डेटा साइंटिस्ट नहीं हायर किए तो कंपनी मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकती। डेटा इज कॉल्ड दी न्यू ऑयल ऑफ द इंडस्ट्री। जैसे बोला जाता था कि मशीन किससे चलती है, कंपनी किससे चलती है? तेल से चलती है, लेकिन अभी कंपनियां जो है डेटा से चलती हैं। जो कंपनी डेटा को सही से यूज नहीं करेगी वो मार्केट में सस्टेन ही नहीं कर सकती। ठीक है, फ्लिपकार्ट कंपनी है, एक दिन में मिलियंस ऑफ मेलर्स भेजती है। एक मेलर को भेजने की कॉस्ट 1 पैसा 2 पैसा। एक हफ्ते में आपके मिलियंस ऑफ व्हाट्सएप मैसेज आते हैं। एक व्हाट्सएप को ऑफिशियली, एक बिजनेस व्हाट्सएप को, जो मार्केटिंग वाला व्हाट्सएप है, उसको प्रमोशनल व्हाट्सएप है, उसको भेजने की कॉस्ट लगभग 90 पैसे आती है एक व्हाट्सएप की। और कितने व्हाट्सएप जा रहे हैं? फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, आप क्रोमा से कोई अपनी एक्सेसरी खरीदते हो तो हर जगह क्या आपके पास व्हाट्सएप आ रहे हैं, बैंक से व्हाट्सएप आ रहे हैं। एक व्हाट्सएप की कॉस्ट कितनी है? 90 पैसा। अब कितने व्हाट्सएप जा रहे हैं? अगर सही से आप एक प्रमोशनल मेलर भेज रहे हो, प्रमोशनल व्हाट्सएप भेज रहे हो, और एक पता है कि आपको, जो आपका यूजर है, वो उसका जो मंथली बजट है मेरी एप्लीकेशन के ऊपर 1000-2000 रुपये, और आप उसको क्या करते हो? उसको आप एक मेलर भेज देते हो जिसमें 10,000-20,000 वाली प्रोडक्ट्स हैं, तो आपकी वो मेलर की कॉस्ट सारी पानी में गई, वो कभी खरीदेगा ही नहीं उस प्रोडक्ट को। तो कस्टमर के बिहेवियर को सेंस करके ऑटोमेटिकली मेलर्स बनाना, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करना, और किन प्रोडक्ट्स में ज़्यादा प्रॉफिट है ये निकालना, मेलर्स बनाना और शूट करना, ये सारा काम एआई का, मशीन लर्निंग का है। ठीक है, तो हर जगह बैकग्राउंड में आपको नए एम्प्लॉय हायर करने हैं, तो कितने हायर करने हैं? किस बड़ी बड़ी कंपनी है 5 लाख, मैं बता रहा हूँ 5 लाख 6 लाख एम्प्लॉयज़, आईटी इंजीनियर्स कहाँ काम कर रहे हैं, आईटी डेवलपर्स कहाँ काम कर रहे हैं? टीसीएस में काम कर रहे हैं, एचसीएल, इन्फोसिस, कितनी कंपनीज हैं। ठीक है, अब उतनी बड़ी कंपनीज पे ये कैलकुलेट करना कि अगले साल कितने एम्प्लॉय हायर करने हैं, कौन डिसाइड करता था? पहले मैनुअल डिसीजंस होते थे, अब डेटा साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं। पिछले 10 साल का, 20 साल का डेटा, इंडस्ट्री का डेटा, स्वॉट एनालिसिस किया, मार्केट की क्या कंडीशंस हैं, यूएस में क्या चल रहा है, सब डेटा से पहले फीड किया, मशीन को ट्रेन किया और फिर रिकमेंडेशन निकाला। तो जितने डिसीजंस पहले मैनुअल होते थे, अब सारे डेटा साइंटिस्ट लेते हैं। ठीक है, कोई बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान लीवर है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, तो क्या करेगी? मार्केट में 1000 करोड़ रुपया उसके प्रमोशन में लगा देगी। ठीक है, इंडिया में ऐड देना, यूएस में देना, ऑनलाइन देना, ऑफलाइन देना, टीवी पे देना, न्यूज़पेपर में देना, बेंगलोर में देना, पुणे में देना, दिल्ली में देना, सहारनपुर, मेरठ में देना। तो कहाँ कितना क्या पैसा लगाना है, किस मीडिया में लगाना है, सारे डिसीजंस अब ऑटोमेटेड डिसीजंस हैं, सारे डिसीजंस डेटा साइंटिस्ट लेते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में एंटर होते हो तो आपके पास पहली चीज़, अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, ठीक है, इफ़ यू आर लर्निंग अ न्यू टेक्नोलॉजी, तो पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? जैसे आपने क्या कर लिया, 5G स्टडी कर लिया, आप जो है ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक कर रहे हो, और आपने 2-3 साल लगा के अच्छे से 5G को पढ़ा कि मैं जाऊंगा तो 5G में जाके जॉब करूंगा, और जब मार्केट में आए 5G आउट हो गया, 6G 7G आ गया। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी अभी भी डिमांड और फ्यूचर में डिमांड इंक्रीज होनी है, ये सिलेक्ट करना बड़ा मैटर करता है। नहीं तो
अगर आपने राइट डोमेन सेलेक्ट नहीं किया तो लिटरली देयर आर स्टूडेंट्स एट सेटपा जो मेरे पास आके रोते हैं कि नहीं सर मैंने गलती करी, 5 साल पहले मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक कॉल सेंटर में मैंने ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद मुझे अब स्विच करना है, कौन सा डोमेन अच्छा है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसके बाद स्विच करना। फिर आपको फ्रेशर में आपको कंपनी दे रही है 60,000 रुपये महीना और आपको जॉब मिल रही है 30,000 रुपये महीना की, फिर आप सोचोगे कि मेरा क्या होगा, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, टेंशन होगी, अगर फ्रेशर में जाऊँ नहीं जाऊँ, तो बड़े बड़े कंसर्न्स रहते हैं कहीं ना कहीं माइंड में। तो इसलिए, और फिर भी अगर फिर भी आप एज अ किसी डिफरेंट डोमेन में काम कर रहे हो तो आपको स्विच करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, अभी करो या 5 साल बाद करो, स्विच तो करना ही है। तो कौन सा डोमेन सही है, उसके लिए करंट क्या डिमांड है और फ्यूचर में क्या डिमांड होनी है, ये हमें देख के ही उस डोमेन में जाना चाहिए। तो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई ऐसे डोमेन्स हैं जहाँ पे हर कंपनी में आपकी जॉब्स हैं। हर कंपनी में आपको डेटा साइंटिस्ट की, मशीन डेवलपर्स की नीड है, डेटा साइंटिस्ट की तो नीड है ही है। अगर कोई भी कंपनी ऐसी जहाँ पे 500 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे तो ऑलमोस्ट गारंटी है कि वहाँ पे कुछ डेटा साइंटिस्ट जरूर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 10 होंगे, कुछ डेटा साइंटिस्ट जरूर बैठे होंगे वहाँ पे, राइट? ठीक है, तो दैट इज कि सेटपा में भी अगर मैं बात करूँ तो डेटा एनालिस्ट है, यहाँ पे भी क्या करता है, हमें डेटा को एनालाइज करके देता है, अच्छा हमारे पास ज़्यादा लीड्स कौन से एरिया से आती हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी में ज़्यादा लीड्स आती हैं, ठीक है, लीड की हमें क्या कॉस्ट पड़ रही है, कौन सा चैनल ऐसा है, सेटपा गूगल एड्स भी देता है, इंस्टा एड्स भी देता है, फेसबुक एड्स भी देता है, कहाँ से हमें बेटर आरओआई निकल रहा है, क्या लीड्स हमारी कन्वर्ट हो रही हैं। तो ये सारे एक महीने में लगभग हम लोग 15 से 20 हज़ार लीड जनरेट करते हैं सेटपा, ठीक है। तो वो सारी लीड्स को एनालाइज करना, आपके पास जो फाइनली बिजनेस कन्वर्ट हो गया उससे क्या एनालिसिस निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डेटा एनालिस्ट बैकग्राउंड में हमें रिपोर्ट्स बना के देते हैं, टैबल्यू में, पावर बीआई में, एक्सेल में, ये सारे काम होते हैं, राइट? ठीक है, डन। तो ये हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली। क्या, अगर आपको पाइथन पढ़ना है तो आपके पास 2 ट्रैक्स हैं, पहला डेटा ट्रैक, डेटा ड्रिवन ट्रैक, और दूसरा फुल स्टैक डेवलपमेंट ट्रैक, ठीक है। फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपको क्या करना है, वेब एप्लीकेशन बनानी है। तो जो काम आप जावा में, पीएचपी में, आप जो है सी शार्प में, विजुअल सी प्लस प्लस में, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले करते आ रहे हो, वही काम अभी भी आपको करना है, बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो बेनिफिट क्या है, कंपनीज को क्या बेनिफिट है पाइथन के थ्रू वेब एप्लीकेशन बनाने में, कि उनको कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन इंजन आज नहीं तो 5 साल बाद लगाने हैं, ठीक है। तो एक टेक्नोलॉजी में काम करो थोड़ा बेटर है, रेदर आप मल्टीपल टेक्नोलॉजी एक ही एप्लीकेशन के अंदर यूज करो। तो बेटर है कि आप पाइथन के थ्रू वेब एप्लीकेशन बनाओ, ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आप डॉटनेट में बनाते हो, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, किसका प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। पूरी दुनिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, माइक्रोसॉफ्ट, एंटी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी है, यूएस की है, तो यूएस, एंटी यूएस, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे यूएस की कंपनीज ही बैंड है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली से कंपनी डरती हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मार्केट में 50 लाख जावा डेवलपर्स काम कर रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी आई डॉटनेट, एक रात को अच्छा डॉटनेट बहुत अच्छी है, बहुत सस्ती है, 50 लाख जावा डेवलपर्स फायर करो और अगले दिन 50 लाख डॉटनेट डेवलपर्स हायर कर लो। ऐसा नहीं होता इंडस्ट्री में। लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी कपड़ों की तरह बदलती है, ऐसा मैंने लोगों के मुंह से सुना है, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं है। फोर्ट्रॉन, कोबोल, पास्कल, मैंने बीटेक किया था तो मेरे से पहले यूज होती थी। अभी भी फोर्ट्रॉन, कोबोल, पास्कल की उतनी ही जॉब्स हैं जितनी पहले थी, लेकिन नई टेक्नोलॉजी की जॉब्स बहुत सारी नई आ गई। नए लोग जो मार्केट में उन्होंने नई टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, टाइम टेकिंग होता है। आपके पास अगर डॉटनेट आई नई टेक्नोलॉजी, अब कोई भी एप्लीकेशन बनेगी तो उसमें 10 फ्रेशर्स होंगे तो 50, 5, 2 कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस भी होंगे, 5 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस। अब 10 साल का एक्सपीरियंस नई टेक्नोलॉजी है, माइक्रोसॉफ्ट के पास ही नहीं होंगे तो मार्केट में कहाँ से मिलेंगे। तो जब तक उतना एक्सपीरियंस बैंड रेडी नहीं होगा तो टेक्नोलॉजी स्विच नहीं होगी, ग्रेजुअली स्विच होती है टेक्नोलॉजीज, राइट? ठीक है। सो दैट इज कि हमारे पास फ्यूचर में 5 साल आपको कोई नई लैंग्वेज आ जाती है, ऐसी लैंग्वेज आ रही है आपके पास जो है पाइथन के अंदर भी या डेटा ड्रिवन डोमेन्स में भी ऐसी लैंग्वेज आ रही है जिनको बोला जा रहा है पाइथन से बेटर है, लेकिन वो उतनी पॉपुलैरिटी ले लेंगी, और अगर वो पॉपुलैरिटी हो भी जाती है उनकी तो 5 साल कम से कम लगेंगे उनको एब्जॉर्ब होने में इंडस्ट्री में, मार्केट, राइट? तब तक आप अगर आपको पाइथन या कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आती है तो 1 वीक 2 वीक्स लगा के आप उसके सिंटेक्स को दूसरी लैंग्वेज के सिंटेक्स को भी इजीली स्टडी कर सकते हो, राइट? ठीक है।
तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपको क्या पढ़ना है, आपको वेब एप्लीकेशंस बनानी है। वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए वेब एप्लीकेशन आपकी फ्रंट एंड, बैक एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेटाबेस, इनसे मिलके आपका क्या बनता है, एक वेब एप्लीकेशन बनती है। ये होती है रिक्वेस्ट आपकी फ्रेशर्स एक्सपेक्टेशंस। और अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो एक टेक्नोलॉजी और साथ में ऐड हो जाती है कि आपको साथ में क्लाउड की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई फुल स्टैक डेवलपर की जॉब आएगी 5 ईयर्स 10 ईयर एक्सपीरियंस के लिए, तो एक्सपेक्टेशन होगी कि उसको फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस और साथ में क्लाउड भी आता हो। लेकिन अगर एक जॉब आएगी फुल स्टैक डेवलपर फ्रेशर्स की, तो उससे क्लाउड की एक्सपेक्टेशंस कम रहेंगी थोड़ी, ठीक है। तो दैट इज कि फ्रंट एंड में आपको क्या करना है, आपको जो आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो जो आपको सामने व्यू दिखाई देता है वो आप फ्रंट एंड डिजाइनिंग में पढ़ते हो, ठीक है, जिसको हम क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फ्रंट एंड में आप क्या पढ़ते हो, वेबडी पढ़ते हो। बैक एंड में आप क्या पढ़ते हो, आप यहाँ पे पाइथन और जेंगो पढ़ रहे हो, ठीक है। और बैक एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेटाबेस में आप क्या पढ़ रहे हो, माई एसक्यूएल है कोई डेटाबेस आप साथ में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये आपके पास है कहीं ना कहीं फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने ले ली कि हमें पाइथन ट्रैक पे जाना है, पाइथन में आगे कंटिन्यू होना है, डेटा एनालिस्ट बनना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, मशीन लर्निंग यूज़ करनी है। एआई में क्या करते हैं हम लोग, जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम है वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं एआई के अंदर। जिन कॉन्सेप्ट पे हमारा ब्रेन काम करता है, न्यूरल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट्स पे, अगर आप न्यूरल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हो प्रोग्रामिंग के अंदर, उस टाइप के एल्गोरिथम्स डेवलप करते हो, उसमें एएनएन, सीएनएन, आरएनएन ऐसे एल्गोरिथम्स आते हैं, उनको यूज़ करके अगर आप एप्लीकेशन बनाते हो तो आपकी एप्लीकेशन एमएल एप्लीकेशन ना बोल के हम उसको एआई या फिर डीप लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशन हम बोल देते हैं, ठीक है। तो आपका एआई का पार्ट है। तो एनएलपी, इमेज प्रोसेसिंग, वो सारे क्या है, वो सारे आपके एआई के अंदर के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जनरेटिव एआई एंड ऑल, जिसके बेस पे चैट जीपीटी आपका बना है, राइट, ठीक है। अब बताओ कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है? हाँ जी। एक पिक्चर जो आपकी माइंड में थी, आप एक विजन के साथ आपने सेटपा ज्वाइन किया कि मुझे डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो आइडिया तो था उस फील्ड का, उस टेक्नोलॉजी का कि कितनी बड़ी है, लेकिन उसका एक बेटर पिक्चर अब आपके सामने आ गई होगी, ठीक है, कि एग्जैक्टली हम किस डोमेन में जा रहे हैं और करना क्या है हमने फ्यूचर में आगे चल, राइट, ठीक है, डन है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट है तो बताओ चैट विंडो में। हाँ जी, नहीं है, राइट, शोएब, शाइमा, शिवम, बाकी बच्चे कहाँ हैं? प्रियंका, राइट, प्लीज यस या नो जरूर लिखो सब लोग। कुणाल, राइट, कुणाल, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आईडीईज कौन सी यूज होती हैं पाइथन डेवलपमेंट। कौन कौन सी आईडीज हम लोगों ने यूज करनी है, तो कौन सी पॉपुलर आईडीज मतलब सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDE, दैट इज द सॉफ्टवेयर वी यूज टू डेवलप द एप्लीकेशन, ठीक है। कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए, तो कौन कौन सी आईडीज पॉपुलर आईडीज हैं, नाम लिख दो चैट विंडो में। ऑफलाइन स्टूडेंट बता दो। नंबर 1, हाँ जी, पाइचैम, राइट, VS कोड, जुपिटर नोटबुक, वेरी गुड, गूगल कोलैब, वेरी गुड, स्पाइडर, गूगल कोलैब, ठीक है। चलिए, तो वी हैव अराउंड रैपलिट, वेरी गुड, ठीक है। एनाकोंडा, ठीक है, एनाकोंडा जो है जुपिटर स्पाइडर जो है उसके ही इंटरफेसेस हैं, किसके, एनाकोंडा के। 1 मिनट आप लोग होल्ड करना प्लीज। हेलो,
मेरी ना क्लास चल रही है एक्चुअली। हेलो, नहीं नहीं ओटीपी नहीं है। 249 कुछ आया है, नहीं ओटीपी नहीं। नहीं, उस पर लिखा है 249 रिफंडेड। ठीक है, या ठीक है। सो दिस इज अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द आईडीज। तो आईडीज आपके पास देर आर 100+ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल टू डेवलप द एप्लीकेशन। अब माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट में क्या चैलेंज है, किसका प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो डॉट नेट पे काम करना है तो आपको मेजरली डॉट नेट एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना, या उससे रिलेटेड जो आपको टेक्नोलॉजीज की नीड है। आपको सर्वर चाहिए तो किसका प्रेफरेंस होगा, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ले लो। आपको डेटाबेस चाहिए तो किसका प्रेफरेंस होगा, डॉट नेट। तो जो आइडियल डेटाबेस माना जाता है कौन सा, वो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, अगेन माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप ओपन सोर्स प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सब चीज़ फ्री मिलेगी, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलेगा। पाईचैम सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, इंडस्ट्री ने यूज़ करना शुरू कर दिया। कल को पाईचैम कहता है कि नहीं, पहले तो मेरा लाइसेंस 1000 रुपये का था, अब मैं 20,000 का बेचूंगा, तो कोई बात नहीं, हम कोई दूसरी आईडी यूज़ कर लेंगे, राइट। लेकिन हमने अब ये पॉसिबल नहीं कि हम पाइथन यूज़ करना बंद कर दें। टेक्नोलॉजी लैंग्वेज चेंज करना डिफिकल्ट है, पर आईडी चेंज करना बड़ा ईजी है, राइट। ठीक है, तो दैट इज कि हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज सेटपा का जो पहला कोर्स है हमारा पाइथन का, इस कोर्स में हम लोग पाईचैम पे काम करेंगे, और फिर आगे जैसे हम लोग डेटा एनालिटिक्स मशीन लर्निंग पढ़ेंगे तो हम आगे डिफरेंट आईडीज को पे काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग खुद पहले ट्राई कर लेना। ठीक है, कि ट्राई कर लेना इंस्टॉल करने का। इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको 2 काम करने हैं, पाइथन इंस्टॉल करना है, गूगल में जाना, सर्च करना पाइथन डाउनलोड, और फिर आपको पाईचैम इंस्टॉल करना है। पाईचैम कम्युनिटी एडिशन आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये दोनों सॉफ्टवेयर, पहले पाइथन इंस्टॉल करना फिर पाईचैम इंस्टॉल करना, ये आप लोग ट्राई करो। नहीं होगा इंस्टॉलेशन तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इंस्टॉलेशन बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर आईटी फील्ड में जाना है, इस इंडस्ट्री में जाना है, तो कोशिश करो अपने आप इंस्टॉलेशन सीखो। डन है, ठीक है। पाईचैम हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, फायदा क्या है पाईचैम यूज करने का? एनी आइडिया? पाईचैम एक बहुत पॉपुलर आइडिया है। इवन वेब डेवलपमेंट जब लोग करते हैं तो वेब डेवलपमेंट में, फुल स्टैक डेवलपमेंट में पाईचैम आईडी ज़्यादा यूज होती है। जो स्पाइडर और जुपिटर आईडी है वो ज़्यादा आपकी डेटा एनालिसिस या गूगल कोलैब है, ज़्यादा डेटा एनालिसिस मशीन लर्निंग वाले डोमेन्स में यूज होती है। पर वेब डेवलपमेंट में पाईचैम एक बहुत पॉपुलर है, VS कोड बहुत पॉपुलर आईडीज है। ठीक है, सो हमारे पास जो है पाईचैम का फायदा क्या है कि पाईचैम का जो रिकमेंडेशन है बड़ा फास्ट है, राइट। पाईचैम का जो रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन मीन्स जैसे आपने लिखा, कल हमने डिस्कस किया था कि हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की, इंपोर्ट मैथ, और मैथ लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास फंक्शन है, कौन सा, लॉग फंक्शन, पावर फंक्शन, साइन फंक्शन। तो जैसे ही आप डॉट लगाओगे इमीडिएटली आपको विद इन मिली सेकेंड्स आपको सारे के सारे रेडीमेड जो भी फंक्शंस, वेरिएबल्स मैथ लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल हो, सारे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो है, जब यही काम आप जुपिटर स्पाइडर पे करोगे तो टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा, रिकमेंडेशन थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली आपके सामने रिकमेंडेशन आ जाएगा कि अच्छा इसके अंदर ये सारे फीचर्स अवेलेबल, राइट। ठीक है, आपने PR लिखा, P लिखा, PR लिखा, तो आपको अकॉर्डिंगली जो भी PR से रिलेटेड रेडीमेड फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं, वेरिएबल्स हैं, वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे, राइट। या PySpark, Replit, वेरी गुड। ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो एक्चुअली क्या है, मैंने आपको बोला कि मुझे आप लोग को प्लेसेबल बनाना है, तो मैं आपको पैरेलली कुछ टिप्स देता रहूँगा। ठीक है, तो आपको यू हैव टू मेंशन इन योर रिज्यूमे टूल्स यूज्ड, कौन कौन से टूल्स आपने यूज़ किए। तो वहाँ पे आप एक अगर आईडी लिखोगे तो उतना इम्प्रेसिव नहीं होगा, 2-3 आईडीज़ पे काम करना आपको आना चाहिए।
No, hardly it will take half an hour time to learn, to upskill from one, या to move from one ID to another ID. ठीक है, तो आपको आईडी पे काम करना जो है वो नहीं सीखना, आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है. प्रोग्रामिंग यू कैन यूज एनी आईडी, बट देर आर सम ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ईच एंड एवरी आईडी. देर आर सम बेनिफिट्स ऑफ गूगल कोलैब ऑल्सो. अगर आपको डीप लर्निंग में जाना है, ठीक है, डीप लर्निंग में क्या है कि आप जो अपना कंप्यूटर यूज कर रहे हो, आपको डीप लर्निंग का एल्गोरिथम रन करोगे. डीप लर्निंग एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, बहुत टाइम प्रोसेसिंग कंज्यूमिंग होते हैं. आपने एल्गोरिथम पे क्लिक किया और आपको शो करेगा कि इस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में 22 आवर्स लगेंगे, क्योंकि आपका कंप्यूटर उतना फास्ट नहीं है. ठीक है, लेकिन गूगल कोलैब क्या करता है, सीपीयू यूज नहीं करता, बैकग्राउंड में जीपीयूज यूज करता है. जीपीयूज आर 10 टाइम्स 100 टाइम्स फास्टर देन सीपीयूज. ठीक है, तो आप गूगल कोलैब पे जाके वही डीप लर्निंग एप्लीकेशन को रन करोगे तो बहुत कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा. आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो हर आईडी के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से आईडी यूज होती हैं. इसलिए आपको 2-3 आईडीज आपके रिज्यूमे में मेंशन होनी चाहिए कि आपने पाइचैम पे काम किया है, वीएस कोड पे काम किया है, जुपिटर या स्पाइडर पे काम किया है, और साथ में आपने गूगल कोलैब पे काम किया. राइट, ठीक है, डन है.